Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome back in this brief course of day 2. Yesterday, in day 1, we discussed about the divisibilities and we long discussed about the divisibilities. How can we find out from 0 to 9 all the numbers we have to utilize? And I also uh, given the particular homeworks of the test of the divisibility, and I hope so that everyone has just completed their homework, but those who have not completed, so again you have to watch from this the first portion. Here given that in the practice questions, these all the practice questions you have to write again in your rough book today, and you have to send these things as a homework. Because of today I am not doing this all these kinds of the portions over here, because of some portions is very rapidly we are going, so some homework is not be visible for you. So you can write here from the practice question 1, 2 and 3. So this practice question 1, this is the divisibility test I given here. They determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Write yes or no. तो यहाँ पे आपको दो नंबर दिए गए 990 एंड 3060. यू हैव टू से इन दिस बॉक्स लाइक 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, अप टू 11 वो डिविजिबल है कि नहीं वो बताना है, यस और नो. तो ये चीज का आंसर के साथ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इन टूडेज होमवर्क as well as in your rough book. There is no need to write each and every points in your fair book, because this is a breeze course. This is for only for the revision, so you have to take these things. This is the practice question number 2. Write the smallest digit in the blank space. आपको ऐसे smallest digit blank space में रखनी है of each of the following numbers so that a number formed is divisible by 3. तो जो नंबर बनता है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है. तो ऐसे ही चीज आप ए और बी दोनों को आंसर के साथ यहाँ पे बताया गया. यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग्स फॉर योर प्रैक्टिस पर्पजेस. So this question number 2 is also be write down and send it as a homework. So practice question 1, practice question 2, and then practice question 3, that is related with the prime factor of 980. 980 का prime factorization जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, वही चीज़ यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करनी है. 980 को 2 से मल्टीप्लाई करते करते आपको जाना है 2, फिर 5, फिर 7, और बाद में आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980 क्या हुआ. जो भी कॉमन निकलता है वही चीज़ हम मेंशन करते हैं, 2, 5 एंड 7. तो दो बार 2 है, देन वी हैव टू टेक वन टाइम this 2, then 5 and then 7. Okay, so 2, 5, 7 is the prime factors of 980. So these things is also be written in your rough book for the practice and send it as a homework. And then practice question 4, solving the distributive property 420 into 139. जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम आगे सीख चुके हैं वो क्लास के में, वही चीज़ का प्रैक्टिस यहाँ पे रिकैप आपको दिया गया है. सो 420 एंड 139. 139 का मतलब होता है 100 प्लस 30 प्लस 9. तो हमें हर एक नंबर उसको 420 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है. 420 इंटू 100 प्लस 420 प्लस इंटू 30 प्लस 420 इंटू 9. Then we find out the finally distributive properties. So this is the practice question number 4. 1, 2, 3 and 4. Now fifth one, find the product using a suitable property. 625 into minus 35 plus minus 625 into 65. So we have to use here 625 into minus 35 minus 65. So take out the common numbers over here, and we got the answer of this first question E. Similar second one B, minus 57 and multiplied with the minus 19. So we have to take the common minus 57. दोनों में क्या कॉमन है, minus 57, तो उसको कॉमन ले लेते और रिमेन नंबर्स का हम
सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -19 -1 यानी -20, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1140। तो सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 सॉल्व करना था। तो ये हुआ आपका आज का होमवर्क जो आपको प्रैक्टिस करनी है ये पांचों पांच क्वेश्चन। ओके, so question 1 to question 5, all the questions you have to write in your rough book and you have to send your today's homework। ये आपके होमवर्क में आज भेजना है। समझ में आ गया? विच थिंग्स आई इंक्लूडेड? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टुडेज पॉइंट। Now we are talking about the rational numbers. This is the second points in day 2 of this bridge course of mathematics. This is the rational numbers. We also learn about the some rational numbers. Which of the following are the integers? आपको ये बताना है -1, 0, -5/4, -3/7 एंड 9। तो इसमें रेशनल नंबर कौन, सॉरी इंटीजर्स कौन है? तो आप बता सकते हैं ना कि जो फ्रैक्शन पार्ट नहीं है वो सब इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि आपको बताया -1, 0 एंड 9 ऑल आर द इंटीजर्स एक्सेप्ट -5/4 एंड -3/7, दीज आर नॉट इंटीजर्स। तो समझ में आ गया कि इंटीजर किसको बोलते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और इंक्लूडिंग द जीरो, ऑल आर द नंबर्स फॉलन इनटू द इंटीजर्स। नेक्स्ट, दिस बोथ थिंग्स, व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ द नंबर्स? अभी तो ये तो समझ गए कि -1, 0 और 9 है वो इंटीजर्स है। तो -5/4 एंड -3/7 आर विच काइंड्स और विच टाइप्स ऑफ द नंबर्स? ऑब्वियसली इट्स रेशनल नंबर्स, दीज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं वो चीज़ हमने पहले सीखी थी। ये आपका रिकेप चल रहा है, आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप रैपिडली हम उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। नाउ रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस हम समझ लें। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज p/q फॉर्म। वो किसके फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। और p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नेवर इक्वल टू जीरो। मतलब ये जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं होता। यदि वो जीरो हो जाता है तो वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और पी और क्यू दोनों कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो ये कंडीशंस जब होती है और ये p/q के फॉर्म में होता है तभी हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। p इज कंसिडर्ड एज ए न्यूमरेटर एंड q इज कंसिडर्ड एज ए डिनोमिनेटर। तो ये डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। Is it clear? Now, next one is that q is not equal to 0, मतलब why can't the denominator be 0? क्यों नहीं होना चाहिए 0? Because of, take the example of 3/0, 3 cannot be divided with the 0। आप समझ में आ रहा है कि क्यों क्यों नहीं 0 होना चाहिए? यदि इस एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा कि 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कभी 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। Always it undefined, so that's why q never equal to 0। Okay, check for understanding -8/5, 1 into 1 by -5, 0, 5/0, which of these are the rational numbers here? Obviously all the numbers are the rational numbers except the 5/0। 5/0 is not a rational number, it is undefined as q is equal to 0। तो समझ में आ गया कि कौन से नंबर इसमें जीरो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट अस लुक एट रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं वेयर विल -5/6 लाइज ऑन द नंबर लाइन। तो -5/6 को हमें नंबर लाइन पे करना है तो -5, 0 और 5 के बीच में हम यूज करेंगे। नाउ हाउ कैन वी सेट दैट? चेक वेदर द रेशनल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली चीज आपको क्या करनी है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? इफ इट इज पॉजिटिव गो टू द राइट ऑफ द जीरो। यदि वो पॉजिटिव है तो जीरो की राइट साइड पे जाना है। यदि वो नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड पे जाना है। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जीरो है, यदि पॉजिटिव है तो राइट ऑफ द जीरो जाएंगे आप।
यदि नेगेटिव है तो कहाँ पे जाएंगे, जीरो से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। तो सिंस -5/6 इज नेगेटिव, इट विल बी लाई टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। तो हमें कौन सी कंसिडरेशन करनी है यहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द जीरो, जो आपको हाईलाइटेड पार्ट में दिख रहा है यहाँ। So let us use this condition first. Now second step, find the integers between which the rational number lies. So -5/6 lies between -1 and 0. किसके बीच में आएगा, -1 एंड 0 के बीच में। और 6 और 5 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। तो ये चीज़ हम सेकंड स्टेप्स में डिफाइन कर लेंगे और पर्टिकुलर नंबर लाइन है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन, 5/6 is greater. So denominator shows that the space should be divided into how many parts, 6. डिनोमिनेटर में जितने भी है, डिवाइड द पोर्शन बिटवीन द इंटीजर्स इनटू एज मेनी पार्ट एज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम कितने पार्ट्स यहाँ पे रखेंगे, 6। सो डिनोमिनेटर शोज दैट द स्पेस शुड बी डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट्स लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट वन, आफ्टर पुटिंग दैट फ्रॉम 0, जंप एज मैनी पार्ट्स एज द न्यूमरेटर टू लॉकेट द रेशनल नंबर। मतलब न्यूमरेटर की पोजीशन पे कितना है, -5 है, मतलब 5 है। तो 0 से कितने लेफ्ट साइड की ओर कितने जंप लगाने, 5। जितने न्यूमरेटर में नंबर है इतने जंप आपको लगाने, 0, 1, -1, -2, -3, -4 एंड -5। उसी पोजीशन को हम इंडिकेट्स करेंगे, दैट इज -5/6। दैट इज द स्टेप नंबर 4 एंड फाइनल स्टेप्स ऑफ इट। So where will 8/3 lies on the number line? Obviously 8/3 मतलब ये पॉजिटिव है, तो 0 से लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड की ओर जाना है। और 8/3 है, मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा, 3। तो पार्टीशन जब हम रखेंगे तो कितना रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दैट। 8/3 lies on the right side of the 0 as it positive. Second step, 8/3 can be written as 2 into 2/3। वो आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8, 3 विल बी लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में ही आएगा। थर्ड स्टेप, 2 into 2/3 portions, because 3 is a denominator parts is 3, so how many parts of 2 in 3, 2 and 3 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन पोर्शन, 2, this is the numerator, so how many jumps you have to use, 2। So 2 jumps between 2 and 3, that is first one 2 into 1/3 and second one is 2 into 2/3, that is our numbers that is lies on the number line. So this is the full procedure how to plot 8/3s on the number line. So use this recapping the steps for plotting a number on the number line. ये अच्छी तरह से पूरे पॉइंट्स आपको लिखना है तो लिख लेना और याद रख लेना। कहीं पे भी आप जब भी रिफर करते ये चीज़ याद रखनी है। चेक वेदर द रेशनल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो राइट साइड ऑफ द ज़ीरो आपको काम करना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो आपको काम करना है। सेकेंड वन, फाइंड द इंटीजर्स बिटवीन विच द रेशनल नंबर लाइज। Third one, steps, divide the portion between the integers into as many parts as the denominator. And fourth and final steps for plotting a number on the number line, that is from 0, jump as many parts as the numerator to locate the rational number. तो ये चीज हुई आपके स्टेप्स की। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So individually you have to do this practice questions over here. Just check it out for use. Which of the following are the rational numbers? आपको बताना है कि इसमें कौन rational number है या नहीं है। Okay, so I also provide here the steps for it and the answer for it. So obviously, which are the rational numbers? You have to also testing this all the numbers in your rough book, and you also send it for today's homework. Okay, so which of the following are the rational numbers आपको बताना है।
All others can be expressed in p by q forms, but minus 3 by 0 is not defined as q is equal to 0. तो वही एक चीज नहीं है इसमें रेशनल नंबर, बाकी सब रेशनल नंबर ही है. प्लॉट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो ये आपको आज एडिशनली होमवर्क में यूज करना है. ओके, सो टुडे यू हैव टू राइट दिस इनटू द प्लॉट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा. -4/6 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और सेकंड वन 45/7 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. यदि आपको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, देन आई ऑल्सो प्रोवाइड हियर द स्टेप्स फॉर इट. -4/6 ऑब्वियसली हाउ टू प्लॉट इट, इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने है. यू कैन ऑल्सो शो, यदि जरूरत नहीं है तो डोंट शो दिस आंसर, but you directly put -4/6 on the number line like that way. And second one 45/7 is that, so that is also be convert into the mixed fraction first, and then you have to use into the number line. तो ये दोनों चीज भी आप आज के होमवर्क में, जैसे कि पहले मैंने वीडियो की बिगिनिंग में आज का होमवर्क दे दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ये 4 क्वेश्चन, और बाद में ये रेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, उसका ये दोनों क्वेश्चन आंसर के साथ इसमें दिया है. यू कैन राइट डाउन दिस बोथ द क्वेश्चंस एंड देन सेंड इट एज अ होमवर्क. इज इट क्लियर? So let us move on to the next point. And last one, in the last session of this video lecture, that is we have to understand about the equivalent rational numbers. ये भी चीज़ हम अच्छी तरह से सीखे अगले क्लास में. Just we have to take the recap of it. What is common between the three fraction -1/2, -2/4 and -4/8? ये तीनों numbers आप देखेंगे तो ये equivalent fraction है. आप देख सकते हैं -1/2 also we can write like -2/4, -4/8. So these all are the fractions are equivalent fractions that represents the same values are equivalent fraction. जिसको हम equivalent fraction किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू सिमिलर है. Now, what are the equivalent rational numbers of -2/6? -2/6 का equivalent rational number क्या है? तो -2/6 को सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होता है. तो -2/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो हमें क्या मिलता है? -4/12. तो -4/12 इज द इक्विवेलेंट विथ -2/6. So multiplying the numerator and denominator with the same integers gives an equivalent rational number. That is the truth that we studied into the 7th standard also. Second thing, dividing the numerator and denominator with the same integers gives an equivalent rational number. Yadi not only multiplying, but there are two methods for find out the equivalent rational numbers. One is multiplying with the same number and division with the same number. तो -2 और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो -1/3 जो मिलता है, that is also be equivalent rational numbers. So now let us see what do we mean by the standard form of a rational number and how to find it. So standard form of a fraction मतलब क्या होता है? Fraction is it is in the standard form when the numerator and the denominator have no common factor other than 1. Example 4/3. इसमें एक के अलावा और कोई दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता. 1/2 जिसमें भी एक ही ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता. ऐसे सभी रेशनल नंबर्स को हम a fraction is it is in its standard form when the numerator and the denominator have no common factor other than 1. तो तभी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं. So 18/45, what will be the standard form of 18/45? So we just convert it into 18/45, find the HCF of the numerator.
and denominator. So and divide them by their HCF. So 9 is the HCF of 18 and 45. 18 and 45 का HCF क्या होता है? 9. उसी को हम कॉमन HCF से यदि दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो मिलता है उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. तो ये चीज़ यहाँ पे आपने आपको बताई, इसीलिए बताई कि यहाँ तक का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं. सेकंड थिंग, जो भी मिल रहा है 18/9 और 45 डिवाइड विथ 9 से 2/5. 2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 18/45. So what is the standard form of a rational number? A rational number is it in the standard form when the numerator and the denominator have only 1 as a common factor. The denominator is a positive integer. Example -3/2, 4/3, etc. So this is the standard form of the rational number. Now what is the standard form of 6 upon -9? Obviously, -2/3 is the standard form of 6 upon -9. Okay, so up to the end of this session, we just concluded the many things today. We discussed into the earlier of this video, that is homework. तो आज का होमवर्क बिगिनिंग ऑफ द वीडियोस है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में दिए वो सभी आपके रफ बुक में लिख के वही सेंड करना है. और इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो में दिए हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस का होमवर्क आज आपका रहेगा. इज इट क्लियर? So I hope so that you understood very well of this bridge course of day 2. We will meet very soon into the day 3 of this bridge course of mathematics. Till, stay home, stay safe at your home, and have a nice day. Thank you very much.